Hello students, welcome to Evolution. Today I am going to teach you the chapter 1 of Geography, India size and location. तो आपको पता है कि ये फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का क्लास 9 के स्टूडेंट्स एंड नाम चैप्टर का क्या है? इंडिया साइज एंड लोकेशन. In this chapter, we will study about what is the extent of India, latitudinal as well as longitudinal, what is latitude, longitude, importance of latitude and longitude, and we will also know about the neighbors of India and why is India called a subcontinent. Right, Peter? So at first, we have to know about location. At first, we have to see the size, the area, total area of India. .28 million स्क्वायर किलोमीटर. आपको पता है 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख. तो टोटल इज 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर अराउंड. टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर. राइट, समझ गए बेटा? अब इंडिया एरिया वाइज किस पोजीशन पर है? तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया? तो इंडिया इज ऑन द 7th पोजीशन. अकॉर्डिंग टू एरिया इंडिया इज ऑन द 7th पोजीशन. तो व्हिच आर द लार्जर कंट्रीज? India, Russia, largest country area wise, Canada, USA, China, Brazil, Australia, and India. It is on the 7th position. Okay बच्चों, समझ के बेटा? इंडिया इज ऑन द 7th पोजीशन अकॉर्डिंग टू एरिया. राइट नाउ, एंड इन population wise इंडिया इज ऑन द 2nd पोजीशन. Population wise India is on 7th position after China. Share of total land, दुनिया में जो जमीन है उसका टोटल शेयर इंडिया में कितना है? 2.42%. एंड पॉपुलेशन इज अबाउट 18%. पूरी दुनिया की लगभग 18% आबादी भारत में रहती है. तो इन दिस वे वी कैन सी दैट 2.42% एरियाज about 18% people are living. तो नो डाउट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज टू हाई, काफी ज्यादा. ओके बच्चे, यू गॉट इट? राइट नाउ वी हैव टू सी दैट एक्सटेंट. तो एक्सटेंट कैसे पता करेंगे? ज्योग्राफिकली वी नो एक्सटेंट इन द फॉर्म ऑफ लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. एक्सटेंट, longitudinal extent.
Now just you have to see that latitudinal extent 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north, and longitudinal extent 68 degrees 7 minutes east to 97 degree 25 minutes east. Now you have to know that what is latitude and what is longitude. Just clear it. Suppose this is the earth. Okay, sorry, what is my drawing is something big. So just like these are the vertical lines. Vertical lines on the globe is called longitudes. These are longitudes. These are the imaginary lines. आपको पता है बेटा, अगर हमें अर्थ की स्टडी करनी पड़े तो हर जगह अर्थ पर जाना पॉसिबल नहीं। तो जब पॉसिबल नहीं है तो जियोलॉजिस्ट ने ज्योग्राफर्स ने क्या किया, एक ग्लोब बनाया। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब इज द ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। इट इज द ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। अब यहां देखोगे बेटा, जो वर्टिकल लाइंस है दीज आर इमेजिनरी। वी कैन से दैट अप टू डाउन लाइन, नॉर्थ टू साउथ लाइंस on the globe, imaginary lines, these are called longitudes, and these lines are called latitudes. Just we know that the imaginary horizontal lines on the globe are latitudes and imaginary vertical lines on the globe are longitudes. Understand the difference between latitudes and longitudes? अब देखते हैं बेटा, important latitudes। Important latitudes। Longest line on the longest horizontal line, longest latitude is called equator. 0 degree latitude, this is neither in north nor in south. This 0 degree is called equator, and equator divides the earth into two equal halves. ये जो है दो इक्वल पार्ट में बांट दिया। इधर हो गया आपका क्या, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, राइट। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, (23.112 degree north and same 23.112 degrees south. This is called Tropic of Cancer. Cancer, and this line is called Tropic of Capricorn. And this line 66.112 degree north, 66.112 degree south. This is called north. This is Arctic Circle, and this is called Antarctic Circle. Okay बच्चों, I think you got it. These are the important latitudes. ये important latitudes है। अब बेटा इसका importance क्या है, तो जस्ट आपको बताते हैं। Just we know that
सन शाइन्स वर्टिकली ओवर इक्वेटर, सालों भर जो सूरज की किरणें हैं वो इक्वेटर पर क्या पड़ती है, वर्टिकली पड़ती है। वर्टिकल का मतलब सीधी लाइन, इक्वेटर पर सीधी लाइन पड़ती है। तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होनी चाहिए, जहां सूरज की सीधी रेखा पड़े। तो हमेशा इक्वेटर पर सालों भर एक समान गर्मी पड़ती है लगभग। और जस्ट वी नो दैट सन शाइन्स वर्टिकली एज इक्वेटर, तो इक्वेटर पर जो सूरज की किरणें जो है वो वर्टिकली पड़ती है, इसका प्रभाव दोनों साइड पड़ेगा, नॉर्थ में भी और साउथ में, राइट। तो जस्ट वी नो दैट ये दोनों एरिया फ्रॉम इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो दिस इज कॉल्ड टॉरिड जोन। टॉरिड जोन, जो टॉरिड जोन कहते हैं, मैक्सिमम हीट अर्थ रिसीव्स देयर फ्रॉम इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड फ्रॉम इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, from 0 degree to 23.1/2 degree north and 23.1/2 degree south। सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि सन सीधी पड़ती है, सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, कहाँ, इक्वेटर पर। तो इसलिए इस जोन को बोलते हैं टॉरिड जोन, राइट। आई थिंक यू गॉट इट। अब सेकेंड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्किल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्किल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू अंटार्कटिक सर्किल। अब बेटा सूरज की रोशनी यहाँ आते आते कम हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक कम रहती है और यहाँ से यहाँ तक भी कम रहती है, दोनों साइड। अब उतनी भी कम नहीं होती, ये इट रिड्यूसेस बट नॉट वेरी मच। तो इन दोनों के बीच में क्या है, न बहुत ज्यादा गर्मी न बहुत ज्यादा ठंड। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन, सेम वे यहां भी टेम्परेट जोन, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड, neither too hot nor too cold, where from tropic of cancer to arctic circle and tropic of capricorn to antarctic circle। तो अंडरस्टूड अबाउट द टेम्परेट जोन। अब आते हैं थर्ड जोन में, यस, बियॉन्ड आर्कटिक सर्किल एंड बियॉन्ड अंटार्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल टू नॉर्थ पोल एंड अंटार्कटिक सर्किल टू साउथ पोल। अब ये तो सूरज की रोशनी काफी कम रिसीव करती है, यहाँ पर इक्वेटर है और यहाँ से यहाँ आते आते सूरज की रोशनी काफी कम हो जाती है, फिर यहाँ से यहाँ तक आते थे सूरज की रोशनी काफी कम हो जाती है। दिस जोन इज कॉल्ड ट्रिजिड जोन। अगेन दिस जोन इज कॉल्ड ट्रिजिड जोन। This is called, and whatever I told you, this is called picture heat zones of Earth, of the Earth। तो बेटा इक्वेटर, इट मीन्स द लैटिट्यूड्स क्यों इंपॉर्टेंस है? तो लैटिट्यूड्स आर इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द हीट जोन्स ऑफ अर्थ। हीट जोन्स को समझने के लिए लैटिट्यूड्स को पढ़ना जरूरी है। एंड इन द सेम वे एक और पॉइंट है, एक और फायदा है, इक्वेटर पर एवरी डे इन अ ईयर डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स इक्वल। 24 घंटे के दिन और रात में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात कहाँ होती है बेटा? इक्वेटर पर, सालों भर। बट जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं डेज और नाइट्स का डिफरेंस है वो बढ़ता जाता है। तो इक्वेटर इज इंपॉर्टेंट because we know the variations of days and nights, and latitudes are important. Getting the knowledge of latitudes are important to know about the heat zones, right beta? Okay beta, just write few questions। अब कुछ questions लिखेंगे। Okay beta, first question, write the name of
countries larger than India. Second, differentiate between latitude and longitudes. What is the importance of latitudes? What do you know about the heat zones of the earth? Which are the important latitudes? Okay बच्चों, I think you can answer these questions in easy way. Okay बच्चों, right now going on the next topic. Right now see about the longitudes. Right now about longitudes, so just we know that vertical lines on the globe are called longitudes. So what is the importance of longitudes? So longitudes are important to know about लोकल टाइम जानने के लिए, लोकल टाइम जानने के लिए लॉन्गिट्यूड को स्टडी इंपॉर्टेंट. क्यों, कैसे? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, अब जैसे मैंने आपको बताया था 0 डिग्री लैटिट्यूड वाज इंपॉर्टेंट, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज आल्सो इंपॉर्टेंट. दिस इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. It is also called Greenwich Mean Time. अब ये कहाँ है लोकेटेड? लंदन के पास. पूरी दुनिया के टाइम को यहां से निर्धारित करते हैं 0 डिग्री मेरिडियन से, और जिसको क्या कहा जाता है? प्राइम मेरिडियन. राइट नाउ अब यहां देखिए, जस्ट अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. This is called Western Hemisphere and this is Eastern Hemisphere. अब ये 90 डिग्री वेस्टर्न, 90 डिग्री ईस्टर्न. अगर 1 डिग्री वेस्ट गए, 1 डिग्री वेस्ट, क्या होगा? टाइम डिक्रीजेस by 4 minutes. और अगर यहाँ 1 डिग्री ईस्ट गए, टाइम इंक्रीजेस बाय 4 मिनट्स. अब सपोज करो बेटा यहाँ 12 बज रहे हैं,
प्राइम मेरिडियन में, तो 1 डिग्री वेस्ट में कितना टाइम होगा? 1 डिग्री वेस्ट टाइम आस्किंग। यस, सही सोचा आपने, 11:56, 4 मिनट्स कम हो जाएंगे। और 1 डिग्री ईस्ट में कितना होगा? सोचो बेटा। यस, 4 मिनट बढ़ जाएंगे, तो 12:04, 12:04, और यहाँ होंगे 11:56। राइट, अगर हम 20 डिग्री वेस्ट में जाए और 20 डिग्री ईस्ट में जाए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बेटा, 80 डिग्री यहाँ माइनस हो जाएगा, 80 मिनट्स माइनस होगा या 80 डिग्री प्लस होगा। तो 80 डिग्री माइनस का मतलब क्या होगा? 10:40, और यहाँ क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली करेक्ट, 1:20। तो यू अंडरस्टैंड दैट इंडिया का टाइम जोन क्या है? व्हाट इज द टाइम इंडिया का? यू अंडरस्टूड दैट क्वेश्चंस? नाउ वी हैव टू सी दैट इंडिया के बारे में। फिर से आते हैं बेटा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। बेटा इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? यस करेक्ट, आपको याद है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। लगभग क्या है? 29 प्लस, मान लेते हैं 30 डिग्री। तो ऑब्वियसली भारत का जो ईस्टर्न पार्ट है ये यहां होगा, और इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वो ये होगा। इंडिया कंप्लीटली ईस्टर्न हेमिस्फीयर, लेकिन जो मोस्ट ईस्टर्न होगा वो ये होगा 97 डिग्री 25, और ये तो मोस्ट ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया इज मोस्ट ईस्टर्न स्टेट क्या है बेटा? गुड, अरुणाचल प्रदेश। एंड मोस्ट वेस्टर्न स्टेट बताओ बेटा? गुजरात। करेक्ट, यू आर थिंकिंग वेरी करेक्ट, दिस इज जे गुजरात। अब यहां देखोगे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कितना डिग्री का वेरिएशन आ रहा है बेटा? 30 डिग्री का। टाइम का क्या वेरिएशन आएगा? 30 डिग्री इंटू 4 इक्वल टू 120 मिनट्स। अगर अरुणाचल प्रदेश में जाहिर सी बात है कि सनराइज 2 घंटे अर्लियर हो, अरुणाचल प्रदेश में सूरज की किरणें कब उगेगी? 2 घंटे पहले कंपेयर टू गुजरात। ऑब्वियस ही बात है, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश। तो हम क्या करेंगे? अगर अपना टाइम अरुणाचल प्रदेश से सेट करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे सुबह हो जाती है, सूरज निकल जाता है, तो ऑब्वियसली गुजरात में 2 घंटे बाद निकलेगा, 7 बजे निकलेगा। तो गुजरात के लोगों को अगर 9 बजे से ऑफिस टाइम है, गुजरात के लोगों को जगने के बाद 2 ही घंटे समय मिलेंगे, इनको 4 घंटे समय मिलेंगे। इस तरीके से प्रॉब्लम्स हो सकती है क्रिएट। किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, हम चाहते तो इंडिया में 2 टाइम जोन भी दे सकते थे, बट किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए इंडिया ने अपना टाइम कहां से रखा है बेटा? इलाहाबाद के पास एक जगह है मिर्जापुर, एंड दिस इज नियर इलाहाबाद। अब वो क्या है? डिग्री में करें तो क्या है? 82.5 मिनट्स ईस्ट, एंड दिस इज द IST। IST का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब ये बताओ कि इंडियन टाइम GMT से, प्राइम मेरिडियन से कितना मिनट या घंटा ज्यादा होगा? कैलकुलेट करते हैं ना बेटा। इंडिया का टाइम क्या है? 82.5 मिनट्स। तो 82.5 मिनट्स
और 1 डिग्री ईस्ट में है, इंडिया ईस्ट में है। 1 डिग्री ईस्ट का मतलब होता है 4 मिनट्स, तो 82 इंटू 4 328 हो गया। एंड 0.5 इंटू 4 22, तो इसमें ऐड कर दो 330। तो इंडिया का टाइम कितना ज्यादा है बेटा जीएमटी से? 330 मिनट्स। अब 330 मिनट्स को आवर में कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? 5 आवर्स कितना होगा? 5 आवर्स 30 मिनट्स। तो इंडिया बेटा जीएमटी से इंडिया का टाइम कितना ज्यादा है? 5.5 घंटा, 5 hours and 30 minutes, and this is called the IST, Indian Standard Time. Okay बेटा, तो क्या है? What is called IST? 82.5 minutes and it is taken from मिर्जा। क्यों मिर्जापुर? क्यों लिया गया है मिर्जापुर से? क्योंकि ये भारत के सेंटर में, this is situated on the central location of India. Okay बेटा? Okay, question. What is meant by longitude? What is meant by prime meridian? और GMT? Third, what is the importance of longitude? Fourth, what is meant by IST? Why the standard time? Why the Indian Standard Time is taken from मिर्जापुर? ओके बच्चों, आई थिंक यू गॉट इट। ओके बेटा, जस्ट इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करोगे बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज, डू यू नो दैट भारत एकमात्र ऐसा देश है, इंडिया इज ओनली वन कंट्री, ऑन इट्स नेम देयर इज एन ओशियन। यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी क्लियरली। इंडियन ओशियन, राइट, करेक्ट। व्हाई इट इज नेम्ड इंडियन ओशियन? इंडिया के नाम पर एक ओशियन का नाम क्यों पड़ गया? क्यों पड़ा बेटा? बिकॉज India has great benefits, advantages through Indian Ocean. Do you know about Trans-Indian Ocean route? अब बेटा ये इंडिया अगर है तो यहाँ से अफ्रीका तक, यूरोपियन कंट्रीज में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ट्रेड पॉसिबल है इंडिया का। तो यहाँ पे इंडिया में कैसे पॉसिबल है? इंडियन ओशियन रूट से। अब बेटा इंडिया में हजारों साल से व्यापार हो रहे हैं अलग अलग देशों के साथ। इंडिया के प्रोडक्ट्स जैसे कॉटन, टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस पूरी दुनिया में जा रहे हैं। किस रूट से जा रहे हैं? इंडियन ओशियन रूट से जा रहे हैं। आज इंडिया का
ज़्यादातर व्यापार इस रूट से होता है एंड इंडिया इज एट ए स्ट्रेटेजिक लोकेशन। दूसरा क्या है, स्ट्रेटेजिकली देखिए, सिक्योरिटी पर्पज से देखिए तो भारत का आप देखोगे कि डिफरेंट पार्ट्स है ना, गुजरात में, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, तो भारत इंडियन ओशियन के मैक्सिमम एरिया को कवर करता है और इंडिया का ट्रेड रूट पर कंट्रोल है। सो इंडिया इज इन वेरी गुड पोजीशन और इससे इंडिया को फायदा हुआ। क्या सिर्फ ट्रेड बढ़ा? क्या फायदा है बेटा? पहला फायदा ट्रेड, दूसरा फायदा क्या है? इंडियन कल्चर, ऑल्सो स्प्रेड, किस रूट के माध्यम से? इंडियन ओशियन के माध्यम से। अब जैसे देखोगे, अब अगर जाते हो अलग अलग कंट्रीज में, इंडोनेशिया, मलेशिया, डिस्पाइट बीइंग अ मुस्लिम कंट्रीज, वहाँ पर लोग रामलीला का आनंद लेते हैं, दे एंजॉय रामलीला। जैसे हमारे यहाँ रामायण पॉपुलर है, रामायण के पात्र, वैसे इंडोनेशिया और मलेशिया में भी पॉपुलर है, थाईलैंड में, बौद्ध कंट्री है, फिर भी वहाँ पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है? अच्छा, बुद्धिज्म कैसे फैला? इंडिया से श्रीलंका में, थाईलैंड में, म्यांमार में, चाइना में, तो दिस बाय सी रूट। तो बेटा इंडियन ओशियन का फायदा है, पहला फायदा ट्रेड है। इंडिया से पुराने समय में ही ट्रेड होते थे, पुराने समय से ही हो रहे हैं और कल्चर फैला। राइट। तीसरा फायदा, इट इज ए नेचुरल बाउंड्री। नेचुरल बाउंड्री है। कैसे बाउंड्री है बेटा? अगर कोई थाईलैंड से इंडिया पर अटैक करना चाहेगा तो हजारों की सेना लेकर आना पॉसिबल नहीं। समुद्र के रास्ते से पुराने जमाने में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं थे। समुद्र के रास्ते से आते तो कितना आते नाव पर? 20-25 लोग, और इंडियन आर्मी तो उनको एकदम पॉसिबल नहीं था। तो ज्यादातर लोग कहां से आए? नॉर्थ से आए, हिमालय से आए। हिमालय भी पहाड़ है, वो भी एक नेचुरल बाउंड्री है, लेकिन हिमालय के अंदर क्या है? पासेज है। ये जो पहाड़ है, बीच बीच में रास्ता है, पासेज, और उन पासेज के माध्यम से विदेशी लोग हमारे देश में आए और उन्होंने कंट्रोल भी किया और धीरे धीरे इंडियन कल्चर के पार्ट हो गए। अब पुराने समय में ग्रीक आए, चाइनीज आए, इन लोगों ने भी इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। दे आइदर एक्सेप्टेड बुद्धिज्म और हिंदुइज्म और दे बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो पुराने समय से आते गए, लोकेशन की वजह से ज्यादातर कहाँ से आए? नॉर्थ से आए और ये इंडिया के पार्ट हो गए। इंडिया का कल्चर भी गया, ट्रेड रूट भी बढ़ा। राइट। तो ये था इंडियन ओशियन से फायदा। राइट बेटा। क्वेश्चन इज व्हाट आर द advantages of Indian Ocean for India? दूसरा बेटा, what do you know about Trans Indian Ocean Route? यस बेटा, इंडियन ओशियन रूट का एक और फायदा है, क्लाइमेट। इट ब्रिंग्स रेनफॉल। अब बेटा इंडियन ओशियन से होकर के जब हवा गुजरती है, मॉनसून विंड, तो काफी सारे मॉइस्चर को घेर कर लेती है और देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश कराती है। तो एक और फायदा है इसका। राइट बेटा। थर्ड, हाउ डिड इंडियन कल्चर spread through Indian Ocean? Okay beta, if you have any doubt you may ask me in the comment box, और आपकी डिमांड होगी तो I will also start the
doubt classes over these topics. ओके बेटा, अब देखते हैं बेटा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया को प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रशासन सही तरीके से चलाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू सेवरल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कितना है? 8। ओके बेटा, अब यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से है बेटा? तो देश का राजधानी भी यूनियन टेरिटरीज है, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, दादरा एंड नगर हवेली, एंड दमन एंड दीव। बेटा ये दोनों अलग अलग थे, अब एक हो गए। ओके बेटा, 6 हो गए। और 2019 में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाने का। वो क्या है बेटा? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म कर दिया है, 2 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए 2019 में। तो जस्ट वी नो दैट 28 स्टेट्स, पहले 29 थे, तो जम्मू और कश्मीर का स्टेट का दर्जा खत्म होने के बाद अब कितने स्टेट्स रह गए? 28। क्यों बनाए गए? ऑफ कोर्स फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। वन गवर्नमेंट can't control whole of the country for the maintenance of law and order and for the proper development, right beta? Questions may be written. Write a note on the administrative division ऑफ इंडिया। आपको पता ही बेटा, जो स्टेट्स होते हैं उसमें चीफ मिनिस्टर होते हैं, स्टेट्स के में चीफ मिनिस्टर होते हैं, वहाँ इलेक्शंस होते हैं और वो कंट्रोल करते हैं, उनके पास पावर्स होते हैं जो स्टेट लिस्ट में आते हैं। बट यूनियन टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और यूनियन टेरिटरीज में या तो गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका शासन होता है, और दीज आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, दिल्ली का ऐसा स्टेट है जहाँ सीएम भी है, चीफ मिनिस्टर भी है, बट स्टिल चीफ मिनिस्टर, दिल्ली इज नॉट ए कंप्लीट स्टेट। जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, बट दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर किसी कंट्रोल में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ओके बेटा, आई थिंक यू गॉट इट। अभी बेटा आवर नेबर्स, अभी हमारे नेबर्स, पड़ोसी कौन कौन है? अलग अलग कंट्रीज है। नॉर्थ में कौन है? 3 कंट्रीज, नेपाल, भूटान एंड चाइना। साउथ में कोई कंट्री ऐसा नहीं है जिसकी लैंड बाउंड्री लगती हो साउथ में। साउथ में कौन है? श्रीलंका।
separated by Pak Strait. ईस्ट में कौन सा देश है बेटा? बांग्लादेश, म्यांमार, एंड वेस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ओके बेटा, write the name of neighboring countries. India. ओके बच्चों, अब आते हैं, लास्ट टॉपिक है इंडिया इज सब कॉन्टिनेंट। India and neighboring countries excluding China, India, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, Nepal, these are called subcontinent, parts of subcontinent. India with neighboring countries are the part of Indian subcontinent. क्यों कहते हैं बेटा? पहला कारण है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर separated by हिमालय। इंडिया म्यांमार, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान। सेकेंड, क्लाइमेटिक कंडीशंस of these countries are सेम, मोस्टली सेम। देखेंगे भारत और बांग्लादेश दोनों में मानसून की बारिश होती है, मानसून से बारिश होती है, पाकिस्तान में, भारत में, म्यांमार में, श्रीलंका में। तो क्लाइमेटिक कंडीशन सेम है एंड मेनी कंट्रीज आर सेम पॉलिटिकल बैकग्राउंड। पॉलिटिकल बैकग्राउंड का मतलब बेटा इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, ये सारे कंट्रीज ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में रहे। सब देशों पर ब्रिटिश ने कंट्रोल किया था, अपना आधिपत्य किया। ठीक है बेटा, समझ गए? वाई इंडिया विथ नेबरिंग कंट्रीज कॉल्ड एज सबकॉन्टिनेंट, राइट। और इंडिया जो साउथ इंडिया का पेनिनसुला भी कहा जाता है। साउथ इंडिया इज आल्सो नोन एज पेनिनसुला। क्यों पेनिनसुला कहते हैं? बिकॉज साउथ इंडिया इज सराउंडेड बाय 3 sides of water. So the areas which are surrounded 3 sides of water is called a peninsula. For example, जो इंडिया है, साउथ इंडिया है, वेस्ट में क्या है बेटा? अरेबियन सी, ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल, और साउथ में क्या है? इंडियन ओशियन। 3 साइड से वाटर से घिरा है, सो इट इज सब कॉन्टिनेंट, राइट। क्वेश्चन सी, व्हाई इज इंडिया विथ नेबरिंग कंट्रीज is called a subcontinent?
What is a peninsula? Meant by peninsula. Okay बच्चों, thank you very much to attend the class and take interest in online class of evolution. We will provide you the quality materials, quality teaching, and welcome your suggestions. How can we improve ourselves even better? Okay बच्चों, we will meet in the next class with any other topic. Till then, goodbye. Thank you very much.